الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے یا لڑتے ہی رہیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تم کو پھیر کے لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ سب جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 217 اور 218۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو آپ کو اندرون مدینہ دشمنوں سے بھی ہوشیار رہنا پڑتا تھا، اور باہر کے دشمنوں سے بھی کہ کوئی حملہ نہ کر دے، آپ کو باخبر رہنا پڑتا تھا۔ اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف واعظ و تبلیغ کے ہی پیغمبر ہوتے تو پھر یہ کام کرنے کی ان کو ضرورت پیش نہ آتی، لیکن چونکہ آپ انقلاب اسلامی کے علمبردار تھے اور آپ نظام باطل کو توڑ پھوڑ کر اس کی جگہ نظام حق قائم کرنے کے لیے اٹھے تھے، تو اس لیے نظام باطل جو تھا وہ کبھی بھی آپ کو برداشت نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں آپ نے ارد گرد اپنے وفادار جانثاروں کے ذریعے سے جاسوسی کے جال پھیلا دیے تاکہ اندرون مدینہ منافقوں کس سے باخبر رہیں اور بیرون مدینہ کے دشمنوں سے بھی ہم بر وقت وہ خبردار کرتے رہیں۔
सन 6 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई 8 आदमियों का एक दस्ता नखला में भेजा था जो मक्के और ताइफ के दरमियान है, और उनको हिदायत फरमाई थी कि कुरैश की नकल व हरकत का जो है पूरी तरह से अंदाज़ा करते रहना है और उसकी खबरें मुझ तक पहुँचाते रहना। लेकिन आपने उनको लड़ने की इजाज़त नहीं दी, सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए। लेकिन वहाँ से कोई तजारती काफ़िला कुरैश का गुजर रहा था, इन लोगों ने उन पर हमला कर दिया, क्योंकि ये भी सताए हुए और परेशान थे कुफ़ार मक्का के हाथों के 13 साल मुसलसल मुसलमान मक्के में मार खाते रहे और मदीने गए तो वहाँ भी चैन से नहीं रहने देते। तो इन बेचारों ने तंग आकर उनका एक आदमी मार डाला, बाकियों को गिरफ्तार करके मदीने ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त नहीं दी। अंदरून मदीना मुनाफिक और बैरूनी दुश्मन सारे प्रोपेगंडा कर देते, देखो ये बने फिरते हैं दीनदार और खुदा परस्त, और ये हुर्मत के महीने के अंदर ये जंग लड़ रहे हैं। इन यानी महीनों में जंग लड़ना तो हराम, यानी काफिर भी इसको समझते थे। अल्लाह फरमाता है उसके इन एतराज़ों का जवाब देते हुए कि ठीक है, एक तो पैगंबर की इजाज़त के बगैर उन लोगों ने गलती की है, उनको इजाज़त नहीं दी गई। दूसरा यह है कि उस गलती पर आप इतना वागाला और प्रोपेगंडा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये तो देखो कि आपने मस्जिद हराम से, मक्के से इन बेचारों को दरबदर किया, जिला वतन किया और वहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया। वो लोग जो जमे जमाए नस्ल दर नस्ल वहाँ रह रहे थे, उनको मक्का छोड़ना पड़ा था और उन पर तरह तरह के जुल्म ढाए, उनको मस्जिद हराम में नमाज तक पढ़ने से मना किया। तो अल्लाह फरमाता, फिर कुछ लोग ऐसे थे जो सुलह पसंद, कुछ ऐसे भी होते हैं कि चलो जी कुछ ना कुछ ले दे के सुलह कर ली जाए और लोगों को नाराज़ ना किया जाए। अल्लाह फरमाता है कि वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। सुलह बेशक जितनी बार मर्जी इनसे कर लो, जितनी मर्जी नरमी दिखा लो, ये अंदर से ही कुफ्र व बातिल इतना आपके खिलाफ रखे हुए हसद व बुग़्ज़, कभी भी ये आपसे लड़ाइयों से बाज आने के नहीं। ये तो चाहते कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें अगर इनके पास में चले। इसलिए ये अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है कि इन काफिरों और मुनाफिकों के साथ कैसे निमटना है। इस तरह की सुलह बाज दफ़ा आदमी को नुकसान दे जाए। और फिर आखिरी आयत में फरमाया, जिन लोगों ने ईमान कबूल किया, हिजरत की, अल्लाह की राह में जिहाद किया, वो लोग अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। यानी ईमान पूरी तरह दिल से लाए और घर बार वतन छोड़ना पड़ा, बीवी बच्चे भी बाजों को छोड़ने पड़े तो परवाह नहीं, इस्लाम की खातिर निकल गए, अल्लाह की रास्ते में जिहाद किया। जिहाद का लफ्ज़ जिद्दोजहद से निकला है। आज तो मुजाहिदीन कहते हैं लड़ने वालों को, फाइटर्स को, हालांकि जो लड़ने वाले होते हैं उनको तो कातिल कहते हैं, और किताल का लफ्ज़ ये कुरान इस्तेमाल करता है लड़ाइयों के लिए। जिहाद का लफ्ज़ इतना जामे है कि इसके ज़रिए से तो आदमी इस्लाह का छोटे से छोटा काम जो करता है और उससे बड़ा काम सारा जिहाद के अंदर आता है। जिद्दोजहद करता है अपने कलम से, अपनी ज़ुबान से, अपने हाथ पाँव से, जिस तरह से भी मुमकिन बने वो इस्लाही कामों की तरफ खुद कोशिश कर करके लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, ये जिहाद। अब मुसलमान भी इस कदर मगरबी प्रोपेगंडे में आ गए हैं कि वो जिहाद को जंगी समझने लगे और मुजाहिदीन कहते ही उनको वो जंग लड़ने वालों को। हालांकि मुजाहिद वो होता है कि जो बुराइयों को छोड़े और बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल करे। तो ये लोग हैं अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार, जिन्होंने घर बार छोड़े हैं। अब घर बार हमने भी छोड़े हैं, हमारे बड़ों ने हिंदुस्तान छोड़ा, पाकिस्तान आ गए, सारा कुछ लुट लुटा के और घर बार छोड़े और सब कुछ छोड़ा, कटते हुए और मरते हुए और कत्ल होते हुए वो पाकिस्तान आए थे। और पाकिस्तान के बाद के हुक्मरानों ने ये साबित कर दिया कि जो नारा पाकिस्तान के लिए लगाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो सारा झूठ ही निकला। यानी करोड़ों मुसलमानों के साथ धोखा किया, झूठ बोला और चीट किया और
जो लाखों मुसलमान रास्ते में कट गए, शहीद हुए, उनकी बेटियां और उनकी बीवियां, उनकी बहनें उनके सामने, उनकी इज्जतों की आबरू रेजी हुई, तो वो सारे का सारा बाद में कह दिया कि नहीं जी, पाकिस्तान को सिर्फ माशी मसाइल मुसलमानों के हल करने के लिए हासिल किया गया था, इस्लाम के लिए हल नहीं किया। तो ये कितना बड़ा धोखा है। आज तक कौम जो है उस सज़ा को भुगत रही है कि बद किरदार और बद नीयत, बद अखलाक और इस्लाम के एजेंट जो है वो पाकिस्तान पर, इस्लाम के ख़िलाफ़ कुफर के एजेंट जो है वो पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर। और हमारी क्या चीज़ खो गई है, कभी हम उसकी तरफ भी तवज्जो करें। हकीकत ये है, हमारा दीन व ईमान, हमारा ज़मीर, सब कुछ ख़रीदा जा रहा है। पहले तो हॉर्स ट्रेडिंग कहते थे मेंबरों को बिकने के लिए कि इधर से फ्लोर क्रॉसिंग करके उधर चले गए और पैसे ले लिए और बदल गए। अब तो BBC की वेबसाइट पे उनको सुअर कहा गया है कि ये सुअर हलाल है या हराम है। अगर मुस्लिम लीग में ये सुअर रहता है तो हलाल हो जाएगा और पीपल्स पार्टी में चला जाता है तो हराम हो जाएगा। यानी इस कदर ये जलील और गए गुजरे लोग हैं जो दुनिया के चंद ओहदों और टकों की खातिर अपने ज़मीर और ईमान को बेचकर सारी कौम को उन्होंने गुलाम बनाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, आपने लोगों को हकीकत यह है कि दिल की और ईमान की रोशनी नसीब की। ये सारे दुनियावी लालच उस वक्त भी मौजूद थे, लोग मादा परस्ताना जिंदगी गुजारते और खोई हुई चीज़ों के बारे में एहसास। मुफ्ती शफी रहमहुल्लाह उम्रा करके वापस आए तो सहाफ़ियों ने पूछा कि मुफ्ती साहब, आप मक्का मदीना से होके आए हैं, कोई वहाँ की नई चीज़ बताएं। मुफ्ती साहब फरमाने लगे, इन नई चीज़ों ने तो हमें बर्बाद करके रखा, हम किसी काम के ही नहीं रहे। ये तरक्कियाँ, ये मॉडर्निज़म, ये रोशन ख्याली, इन चीज़ों ने तो तबाह व बर्बाद करके रखा। कहते हम तो वहाँ जाते हैं कि कोई पुराना, कोई रोड़ा, कोई ईंट, कोई पत्थर ही मिल जाए जो 1400 साल पुराना हो, हम देख के उससे अपनी आंखें ठंडी करें कि ये उस ज़माने का है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद, जब उनकी बरकतों से इस्लाम दुनिया में गालिब आया था। हम तो उन चीज़ों को ढूंढने जाते हैं, उनको देखने जाते हैं। हम नई चीज़ों से तंग आए हैं। और ये हिजरत का जो यहाँ फरमाया, कुरान में कई जगह जिक्र है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने भी वतन छोड़ा था। उसके असबाब क्या थे? इसलिए हम भी पुरानी चीज़ें, हमें तो लुत्फ़ आता है वही 1400 साल पुरानी चीज़ें पढ़ पढ़ के खुद भी लुत्फ़ आता है और दूसरों को बताने में भी लुत्फ़ आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर हिजरत क्यों की थी, उसके असबाब क्या। वफ़ी मौसमिल आमिल हादी अशर मिनल बासा समिअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ज़लामिल लैल अला बुअद मिन मक्का इंदल अक़बा नासन यतकल्लमून फवसल इलैहि। 11 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में तबलीग और वाज करते रहे और कोई खातिर खाह नतीजा कौम से बरामद ना हो। हर वक्त दुश्मन ही दुश्मन, सजाएं ही सजाएं, मुश्किल ही मुश्किल थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 11वें साल नबुव्वत के हाज का मौसम था, तो आपने एक रात देखा कि मक्के से कुछ दूर घाटी पर चंद लोग बैठे हैं रात की तारीकी और अंधेरे में, और वो वहाँ बैठे बातें कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अंधेरे में उनके पास पहुँचे। वकान सित्ता, सिर्फ 6 ही आदमी कादिमू में यसरिब, और वो यसरिब से आए थे, मदीना से। फ़ज़कर अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़मत अल्लाह व जलाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 6 के सामने अल्लाह ताला की अज़मत बयान, खुदा का जलाल उनके सामने पेश किया कि कितना बड़ा खुदा है जिसने ये सब कुछ बनाया। व अयक़ज़ा क़ुलूबहुम, उनके दिलों को जगाया। काफिर थे, मुशरिक थे, दिल मुर्दा हो चुके थे,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान मुबारक से उनके सोए हुए दिलों को जगा रहे थे। वनफ़रहुम मिनल अवसान, और बुतों से उनको नफरत दिला रहे थे। वअल्लमहुमुल खैर, भलाई की तालीम दे रहे थे। वलअफ़ाफ़, और पाक दामनी की, कि इंसान को ज़िंदगी पाक साफ गुजारनी चाहिए। वमनअहुम मिनल मुनकरात, और बुराइयों से आप रोक रहे थे। वनव्वरा क़ुलूबहुम बिआयातिम मिनल कुरआन, और कुरानी आयात सुना सुना के आपने उनके दिलों को मुनव्वर कर दिया, रोशन कर दिया। वमा वसनियतिहिम कानू यस्मऊना मिन खुलफाए मिन यहूदिल मदीना अन्ना नबिय्यम मिनल अंबिया मबऊसन फी हाज़ा ज़मान। इन लोगों ने मदीने में यहूदियों से ये सुन रखा था कि इस ज़माने में एक आखिरी नबी आने वाला है। वलिज़ा अस्लमू बिदावतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए वो पहले से मुंतज़र थे, सुना हुआ था कि आखिरी पैगंबर आने वाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें उनके दिल के अंदर उतर गई और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। वरजऊ इलल मदीना दुआतम मुखलिसीन, वापस मदीना जब गए हैं तो दाइए इस्लाम बनकर गए हैं और मुखलिस बनकर। सिर्फ 6 ही आए। ये था कारनामा। अन्नहुम कानू युबश्शिरूना कुल्लन नास बिअन्ना ज़ालिका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी काना यंतज़िरुहुल जमी क़द ज़हर। अब मदीना में जाकर लोगों को खुशखबरी सुनाते हैं, देखो वो पैगंबर आ गया है जिसका हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। वक़द समिअना कलामहु बिअस्माइना, हमने उस पैगंबर का कलाम सुना है अपने कानों से। वरअयना वजहहु बिअयूनिना, हमारी आंखों ने आपका चेहरा मुबारक देखा है। वन्नहु क़द हदाना इलल्लाहिल हय्यिल क़य्यूम, और उस पैगंबर ने हमें उस अल्लाह की तरफ दावत दी है जो हमेशा जिंदा रहने वाला और हमेशा कायम। फलम तबक़ा लदैना अलआन क़ीमतुन लिहयातिद दुनिया व मौतिहा, अब हमारे नज़दीक इस दुनिया की और मौत की कोई कदर कीमत नहीं रह गई। यानी हमें ये एहसास बेदार कर दिया है कि हकीकी ज़िंदगी जो है वो मरने के बाद शुरू होने वाली। अब हमें इस दुनिया की दिलचस्पी कोई बाकी नहीं। ये है वो 6 आदमी पहले मदीने के जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी और ईमान उनके दिल के अंदर घर कर गया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकी रहनुमा थे खुदा की तरफ से, जिन्होंने लोगों के ज़मीर को और दिलों को बदल के रख दिया, अंदर को बदला। अल्लामा इकबाल भी यही कहते हैं, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। कि तू मुझसे इमामत और लीडरशिप की बारे में पूछता है, खुदावंद आलम तुझे भी हकीकत और राज समझने की सलाहियत नसीब है। वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। यानी इमाम बरहक, सच्चा इमाम, मुसलमानों का सही रहनुमा वो हो सकता है जो असरे हाजिर की खराबियों से आपके दिलों में नफरत पैदा करे, तुम्हें गैर इस्लामी माहौल से बेजार करके रख दे, तुम्हारा दिल इस दुनिया से उचाट होकर रह जाए। और फिर दूसरी खूबी ये है, मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। कि मौत के शीशे से, आईने से वो तुझे महबूबे हकीकी का चेहरा दिखाकर तेरा जीना और मुश्किल कर दे। कि खुदावंद आलम जो असल में महबूब हकीकी है, उस तक पहुंचने का तरीका क्या है? और वो तरीका है शहादत का। आदमी को जब अल्लाह ताला के मुनव्वर चेहरे, उसके अनवार व तजल्लियात का शऊर हासिल होता है, फिर उसके सामने ये दुनिया हेच होकर रह जाती है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। फिर उस खुदा की तलाश में मारा मारा फिरता है, उसकी राह में सब कुछ कुर्बान करता फिरता, हत्ता कि अपनी जान तक कुर्बान कर देता है
اور शौक़ शहादत लिए हुए इधर उधर फिरता कि किसी तरह मैं इस दुनिया के झंझटों से निकलकर अपने हकीकी मालिक के पास पहुंच जाऊं। और तीसरी खूबी इमाम बरहक की ये है, दे के एहसास ज़िहां तेरा लहू गर्म आ दे, फ़क्र की सान चढ़ाकर तुझे तलवार करे, कि तुझे एहसास दिला दे कि तेरा नुकसान कितना हो चुका है। जिस तरह सूरह अल-असर है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम के इंसान सरासर खसारे में है। इसको इसका शऊर आ जाए कि मैं जो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ निरी घाटे की ज़िंदगी है, नुकसान की ज़िंदगी है। जो रहनुमा और जो लीडर आपके इस एहसास को बेदार कर दे, हकीकत में वो इमाम बरहक। फिर फरमाते फितना मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे कि मिल्लत इस्लामिया के लिए बहुत बड़ा फितना ये है लीडरशिप का कि वो लोगों को मुलूकियत, सलातीन और डिक्टेटर्स की तरफ रहनुमाई करे कि जी इस्लाम का और मुसलमानों का तरीके ज़िंदगी जो है वो बादशाही है या डिक्टेटरों और आमिराना। अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि कानून इलाही के बजाय ऐसे लोग अपने कवानीन जब चलाते हैं और नाफिज करते हैं, ना मानने वालों की गर्दनें उड़ाते हैं और उनको जेलों में फेंकते हैं। खुदा करे तुझे समझ आ जाए कि इस्लाम ने इसकी कोई तालीम नहीं दी है कि मुसलमानों की लीडरशिप आमिर हो, डिक्टेटर हो, बादशाह हो, मलूकियत के परस्तार। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गौर करके देखें, जो हमारे सबसे बड़े सबसे अव्वल इमाम बरहक हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी का स्टाइल क्या था, किस तरह ज़िंदगी गुजार की। यानी जब दुनिया से रुखसत हुए हैं उस वक्त भी मकरूज दुनिया से रुखसत हुए। यहूदी की दुकान से कुछ जौ लेके आपने घर दिए हुए थे और अपनी ज़रा जो थी वहाँ उसके पास गिरवी रखी हुई। बाद में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला तो आपने वो रकम अदा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मजबूर थे माशी तौर पर, यानी चारों तरफ से जो माले गनीमत जंगों में आ रहा था, असर के वक्त तक सुबह से शुरू होते बांटना, असर तक खाली झोली घर में चले जाते थे, सारा कुछ लुटा देते। और वो पैगंबर इतना अजीम शान है, हम तो सोचते हैं ना कि हमारे बच्चों का क्या बनेगा, बल्कि हम तो अपने पोतों पड़पोतों तक की सोच रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत हासिल कर ली जाए। बच्चों के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं बैंकों में कि कहीं हमारे बाद ये परेशान ना हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यकीन मानिए, जब दुनिया छोड़ी, खस्ता से कमरे थे आपकी बीवियों के, और जब बनो उमैया की हुकूमत आई जालिमों की, इन्होंने मस्जिद को वसी करने के बहाने वो कमरे गिरा। तारीख में है कि मदीने के मुसलमान जितना उस रोज रोए कि यही तो एक निशानी रह गई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, गैर मुस्लिमों को दिखाने के लिए कि हमारा पैगंबर इन कमरों में जिंदगी गुजार के गया है कि हाथ उठाए तो हाथ छत को लगता है। इतना वसी कमरा नहीं है कि उसमें कई बेड लग सके। इतनी सादा जिंदगी गुजार के गए और उन गिराने वालों ने बहाना ये किया कि मस्जिद वसी कर। दिल में चोर ये था कि हमने तो महल्लात बनाए हुए। जब गैर मुस्लिम देखेंगे कि हमारे तो बड़े बड़े महल हैं, जब वो मदीने आके पैगंबर के ये अदना से कमरे देखेंगे तो वो हमें कोसेंगे कि तुम्हारा पैगंबर कैसे जिंदगी गुजारते और तुम कैसी गुजार रहे हो। इस इल्जाम से बचने के लिए उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो निशानियां भी बर्बाद की।
मुसलमानों के सही हुक्मरान नमूने दे के गए, और जितना ज्यादा ओहदे पर मुसलमान पहुंचता है उतना ही ज्यादा वो फकीर हो जाता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ये बनु उमय्या के ही खलीफा है। इन जालिमों ने जितना दुनिया में जुल्म किया, सहाबा की गर्दनें उड़ा दी। यानी अगर तकरीर करते हुए नमाजों के टाइम गुजरते जा रहे हैं, जोर गुजर रही है, असर गुजर रही है, खड़े हैं जनाब तकरीरें करना है गवर्नर बनु उमय्या के, किसी ने अगर खड़े होकर कह दिया कि जी आप खुदारा नमाज तो पढ़ा दें, तो उनका सिपाही उठता और उस आदमी को पकड़ के, अजीम शान साहबी को महल में ले जाके उसकी गर्दन काट के मस्जिद में ला के फेंक देता है। इतने बड़े बड़े जुल्म, उनमें से अल्लाह ताला ने उमर बिन अब्दुल अजीज को पैदा किया, था उन्हीं का ही, बस उसका ज़हन ही ऐसा था। अगर वो मदीने का गवर्नर था तो अय्याशाना जिंदगी गुजारता था। मुलाजिम अपने गुलाम को कहता था कि सबसे ज्यादा कीमती कपड़ा जो हुआ बाजार में वो खरीद के लाना है, लेकिन जब खलीफा बनता है तो फिर गुलाम को कहता है कि सबसे सस्ता और रद्दी कपड़ा मेरे लिए खरीद के लाना है। बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि एक औरत बेवा अपनी जवान 6 यतीम बच्चियों को लेकर कूफे से हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास पहुंचती है और देखती है, पूछते पूछते जी खलीफा किधर है। लोगों ने बताया, पूछते हुए जब पहुंची है तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज जो उस वक्त सबसे बड़ी दुनिया की सुपर पावर, 3 बर्रे आज़मों पर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज, और वो बर्रे आज़म जो सारी दुनिया से आबाद बर्रे आज़म है। उसने जब देखा इस खलीफा का मकान, छोटा सा मकान है, कच्चा, और उसके भी बाहर जो दीवार है उस पर से मट्टी गिरी हुई है जगह जगह से, वो देख के परेशान सी हुई कि ये, मैं तो इसके पास इमदाद के लिए आई थी, ये मेरी क्या मदद करेगा, इसका तो अपना ही हाल बड़ा बुरा। वो कहती अभी मैं देख ही रही थी तो अंदर से एक आदमी निकला, उसने अपने कुएं से जो छोटा सा उसके घर के अंदर था पानी का डोल निकाला और मट्टी को कस्सी से इकट्ठा करके जो कहानी बनाते हैं वो बनाई, गारा बनाया। तो गारा बनाते हुए ये कहती मैंने उनके दरवाजे पे दस्तक दी तो उनकी बीवी अंदर से निकली, और वो बीवी भी मामूली नहीं थी, फातिमा उसका नाम था, जिसका बाप भी खलीफा रह चुका था बड़े दबदबे का, जिसके 2 भाई खलीफा रह चुके थे, जो खुद भी वक्त के खलीफा की बीवी है। वो निकलती, वो भी सादा सी। तो ये औरत फिर उसको अपनी मजबूरियां सुनाती, मैं इतनी दूर से कूफे से आई हूँ दिमश्क, 6 मेरी बच्चियां जवान हो गई हैं, मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं इनकी शादी करूं। वो अपना रोना रो रही थी और फिर कहने लगी कि ये तुम्हारा मुलाजिम जो कहानी बना रहा है, गारा बना रहा है, ये बड़ा बेहया है, कभी मेरी तरफ देख रहा है कभी तेरी तरफ देख रहा है। उसने कहा, जो खातून अव्वल फर्स्ट लेडी, वो कहती है बहन यही तो खलीफा है। अंदाजा लगाएं, खुद ही कस्सी लेकर वो अपनी मट्टी गारा जो है बना रहा है और खुद ही अपनी दीवार जो है उसको दुरुस्त कर रहा है। तो वो परेशान हुई कि अब शायद मेरा क्या ये हशर करे, खलीफा है। खलीफा ने पूछा क्या मामला, बीवी ने कहा जी ये कोई औरत बेवा आई है कूफे से, बड़ा लंबा सफ़र करके, कई रोज़ का, 6 बच्चियां हैं, उनके लिए ये शादी के लिए मदद के लिए आई। खलीफा ने उसी तरह हाथ पाँव थोड़े बहुत साफ किए, कागज़ पर कूफे के गवर्नर के नाम खत लिख दिया कि इस औरत की मदद की जाए। अब जब वो खत लेके गवर्नर के पास पहुंचती है तो वो गवर्नर रोने लगता है, कहती है कि क्या परेशानी है, कोई गलत बात उसने लिख दी। कहते नहीं, शायद आपको खबर नहीं हुई अभी तक, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज फौत हो चुके।
پھر وہ گھبرائی کہ شاید اب میرا یہ کام نہ ہو سکے. تو اس گورنر نے کہا کہ میری بہن گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ وہ حکمران اور خلیفہ نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں یا جس کے منہ پر اس کا حکم مانا جاتا ہے. یہ وہ خلیفہ ہے جس کی غیر حاضری میں اس کا حکم مانا جاتا ہے, جس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا حکم مانا جاتا ہے. کہتی 20 سال کے بعد بھی اگر یہ خط میرے پاس لے کے آتی میں اسی طرح اس کی تعمیل کرتا جیسے ان کی زندگی میں کرتا. یہ تھے وہ حکمران نمونے کے اسلام نے پیش کیے جن سے ہم محروم ہو کے رہ گئے. ہمیں ان کا احساس ہی نہیں رہا. ان بدماشوں کو بار بار ووٹ دے دے کے ملک کا اور اسلام کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں جوہر قابل موجود ہی نہیں رہے, موجود ہیں, چاہے وہ تھوڑے ہیں, خال خال ہیں, لیکن عوام الناس کی نگاہ وہاں تک پہنچتی نہیں. بار بار انہیں کوئی جاگیرداروں, سرمایہ داروں کو اور ان فوجیوں کو یا اپنے سروں پہ مسلط کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے ہماری قوم کو. ہم جس گمراہی کی طرف, جس تنزل کی طرف جا رہے ہیں, کہیں تو بریک لگے اور کہیں تو سٹاپ آئے کہ ہم اس سے رک کر کبھی اپنی منزل کی طرف جانے کی بھی کوشش کریں. نہ پاکستان کو آج تک منزل ملی ہے جس کے لیے یہ بنایا گیا, نہ پوری ملت اسلامیہ کو کوئی ایسا حکمران آج تک ملا ہے جو اسلام کی طرف واقعی قوم کو جو ہے وہ لیڈ کرے. بس سارے لٹیرے اپنے کرسیوں کے بھوکے, اقتدار کے بھوکے وہ چھائے ہوئے ہیں, اور ہر ایک کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجھے اپنا قبضہ جو ہے وہ قائم رکھنے کی جو ہے وہ مہلت ملتی رہے اور دنیا بیوقوف بنی رہے. حضرات, آپ لوگ یہاں رہتے پاکستان میں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اصلاح کا کوئی پہلو نکلے تو کوشش کیا کریں اپنے پیچھے رشتہ داروں کو, دوستوں کو. یہاں آ کے تھوڑا سا شعور جو ہے وہ آدمی کا ڈیولپ ہوتا ہے. وہاں رہ کے تو بالکل ہی سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے. یہاں احساس ہے تھوڑا بہت, تو پیچھے ان کو کہا کریں کہ خدا را کوئی تو بہتری کی طرف اور اصلاح کی طرف جو ہے وہ قدم اٹھانے کی کوشش کرے. ورنہ اسی طرح چلتے رہے حالات آپ جانتے ہیں کس طرح سے یعنی بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ملک کا نام و نشانی مٹانے پر کفر تلا ہوا, یعنی ڈرون حملے بار بار کیے جا رہے ہیں, ساری قوم چیخ رہی ہے. ہمیں تو سچی بات سن سن کے القاعدہ کا نام, طالبان کا نام, اتنی پریشانی اور نفرت ہے. خدا را تمہاری تو یہ ہابی ہے, یہ اپنے ملک میں پیدا کر لو اور ان سے کھیلتے رہو, ہمارا ملک تو برباد نہ کرو. کتنے بے گناہ مسلمان آج تک مارے گئے, اور ابھی تک یہ بے شرم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بلوچستان پہ بھی حملہ کرنا ہے, وہاں چھپے ہوئے. یعنی آنے بہانے یہ آپ سب کو معلوم ہے. صرف تکلیف کفر کو یہ ہے کہ پاکستان نے ایٹم بم کیوں بنایا ہے. اس کو تباہ کرنے کا سارا منصوبہ افغانستان میں شروع کر دیا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ہمارے صوبہ سرحد میں جنگ لے آئے, اور آہستہ آہستہ ہم کہتے ہیں بلوچستان میں, کیونکہ سیدھی طرح تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم آپ کا ایٹمی پلانٹ جو اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ ننگی جارحیت, یہ جو کچھ کریں, یہ قتل کریں, بمباری کریں, تباہ و برباد کریں, یہ جائز ہے. مسلمان اگر آگے سے پتھر اٹھا کے اس کا مقابلہ کرے, جواب دے, تو وہ ٹیررسٹ ہے. اندازہ لگا, یعنی اپنا دفاع کرنا بھی جرم, اور ان کو اتنا بدنام کر کے رکھ دیا گیا ہے. ہم لوگ قرآن سے, اپنے نصاب سے جہاد کی آیتیں نکال دو, اپنا نصاب تعلیم بدل دو, اپنے اسلامک مائنڈڈ ٹیچر جو ہے ان کو بدل دو. ہم اس لیے تو دنیا میں پیدا نہیں کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے, یہ حضرات زندگی بڑی تھوڑی ہے, مرتے ہی ہمارے گریبان سے پکڑ کے پوچھنا ہے کہ تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا. اپنی اولادوں کے لیے تو سب کچھ کرتے رہے, اسلام کے لیے کیا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح شعور نصیب کرے, اور اسلام کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنے کی ہمیں توفیق دے دے.
یہ زندگی جو ہماری چل رہی ہے، احساس ضیاء ہم کو ذرا نہیں رہا کہ ہم کہاں کھڈے میں جا کے گر گئے ہیں، کب نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور اور ہمت نصیب کرے اور توفیق نصیب کرے اور ہماری اصلاح فرمائے، اور دنیا میں جو بدامنی اتنی پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو امن میں بدلے۔ یہ آئے دن یعنی خود کش حملے پاکستان میں، یعنی کوئی جینے کا رہنے نہیں دیا جا حال کہ کوئی آرام سے زندگی گزار سکے۔ نہ کھانے کو مل رہا ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، مسائل ہی مسائل، اور ان کو بس اپنی کرسیوں کی پڑی ہوئی ہے۔ بات مسلم لیگ کو اتنی ہی تکلیف تھی کہ ہماری وزارت کو چھن گئی، اس کے لیے تو دوڑ لگا دی، مل گئی تو ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوئے۔ کیا مسائل حل ہو گئے؟ لوگوں کو روٹی ملنی شروع ہو گئی ہے، بجلی جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ سب بے شرم اور بے غیرت لوگ ہیں جو صرف وزارتوں اور اپنی کرسیوں کی خاطر عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، اور عوام وہ بڑے بیوقوف ہیں جو ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کے نعرے مارتے ہیں۔ خدا ہمارے عوام کو ہدایت نصیب کرے کہ ان ظالموں کو، ان جاگیرداروں کو، ان سرمایہ داروں کو گردنوں سے پکڑ کر نیچے اتارے اور پھینکے ان کو گڑھے میں، اور کوئی اللہ کا بندہ وہاں پر حکومت کرنے کے لیے وہ آگے لائے۔ خدا ان کو یہ ہدایت نصیب کرے۔ ہم دعائی کر سکتے ہیں اور جتنا کچھ کہہ سکتے ہیں وہ آپ بھی کہا کریں، زبان کھولا کریں، ایسی باتیں عام کریں، کیونکہ ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر کوئی نمونہ نہیں۔ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، جس طرح ان کے خلفاء نے زندگی گزاری ہے، ہم اسی طرح کے حکمران چاہتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس امت سے ایسے لوگ ختم نہیں ہو گئے، موجود ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے، ان تک ہماری نظر نہیں جاتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔